today we are breaking of bread. आज प्रभु भोज है। So, the one thing the Lord told us always is to remember His death till He comes. प्रभु ने एक चीज हम सबको बोला है कि हमेशा हमें उसके मृत्यु को याद करना है जब भी हम लोग साथ में मिलते हैं। And why do we remember the death of Jesus? और हम लोग उसके मृत्यु को क्यों याद रखते हैं? Because that is the foundation of our Christian life. क्योंकि वो सिद्धांत है हमारा मसीह जीवन का। If Jesus hadn't died for us, we would not be here. अगर वो हमारे लिए नहीं मरा होता तो हम लोग आज यहाँ पे नहीं होते। We would have been on our way to hell, हम लोग नरक की ओर जाते रहते थे, living in all our sins, अपने हमारे पाप में रहते थे and being depressed and very all condemnation. और निराश रहते थे, एकदम निंदा की जीवन जीते रहते थे। But Jesus died for us, and we believe that Jesus died for our sins. We are alive today, लेकिन हम लोग मानते हैं कि प्रभु यीशु हमारे पापों के लिए वो मरा है, इसलिए आज हम लोग जी रहे हैं उसके लिए। and we have living hope today, and we become His children, and God takes care of us. और एक आशा है हमारे पास उसके लिए और वो हमारा ख्याल रखता है। The more we think about the death of God, of death of Jesus, the more humble we become, जितना हम लोग प्रभु यीशु के मृत्यु के बारे में सोचते हैं उतना हम लोग नम्र होते जाते हैं। and that is why it's always a blessing. इसलिए वो हमारे लिए एक आशीष है। The Bible says that Jesus said, "This is the cup of blessing." प्रभु यीशु ने कहा कि ये कप है आशीष का। So that is why we come to remember the Lord. That the Lord said, "As often as you do this in remembrance of me." इसलिए हम लोग यहाँ पे सब इकट्ठा होते हैं और प्रभु यीशु ने कहा कि जितने बार भी तुम करो मेरे याद में ये चीज तुम करो। You know, Jesus, Hebrews chapter 12, He is the author of our faith and the finisher of our faith. इब्रानी 13 में लिखा है कि वो हमारे विश्वास का शुरुआत भी करता है और उसका अंत भी वही करता है। He is always the author. He started this work in each one of our lives. वो लेखक है हमारे विश्वास का, ये काम उसने हमारे जीवन में शुरुआत की। That's why He is the foundation, and we always give thanks to Him. इसलिए वो बुनियाद है हमारी और हमेशा हमें उससे धन्यवाद देना है। And He is there to teach us right up to the very end of our lives. और हमारे जीवन के अंत तक वो हमें सिखाते जाएगा। He's put His faith into our hearts, and He'll also help us to complete that faith. ये विश्वास हमारे मन में उसने डाला है और उसका अंत भी वही करेगा। I was thinking what in Matthew chapter 18, what Jesus said in Matthew chapter 18. मत्ती चैप्टर 18 के बारे में सोच रहा था प्रभु यीशु ने इसमें क्या कहा है उसके बारे में। मत्ती चैप्टर 18 verses 1 to 4. वाक्य 1 से 4। At that time, the disciples came to Jesus saying, "Who then is the greatest in the kingdom of heaven?" And he called a child to himself, and stood him in their midst, and said, "Truly I say to you, unless you are converted and become like children, you shall not enter the kingdom of God." उस घड़ी चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है? इस पर उसने एक बालक को पास बुलाकर उनके बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तुम न फिरो और बालकों के समान न बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा, वह स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा। Yeah. See, this is the time when the disciples came to Jesus. ये वैसा समय है जब प्रभु यीशु के चेले उसके पास आए And He spoke to the disciples. और उसने अपने चेलों से बात He किया। was not speaking to everybody. वो सबसे बात नहीं कर रहा था। And this is the question which the disciples had. और ये एक प्रश्न था जो उसके चेले पूछ रहे थे उससे Who is the greatest in the kingdom of God? कि प्रभु के राज्य में सबसे महान कौन होने वाला है। Like all the questions that we also get, who is the best batsman, who is the best footballer, who is the best, who is the Guinness Book of Records. They had a great curiosity to know who will be the best. तो हमारे पास भी कई बार ऐसे प्रश्न होते हैं कि प्रभु की इस दुनिया में या खेल में कौन सबसे बड़ा खिलाड़ी है, कौन सबसे महान व्यक्ति है। उसी तरीके से चेलों के पास भी ये सवाल था। Who is the richest man in the world, and who is the most strongest man, and what else? What are things? Who is the greatest? हम लोग सोचते रहते हैं कि दुनिया में सबसे अमीर आदमी कौन है, सबसे ताकतवर आदमी कौन है, सबसे महान व्यक्ति कौन है। So they were quite curious to know how to become so great in God's kingdom. तो उन लोग के अंदर भी दिलचस्पी थी जानने के लिए कि प्रभु के राज्य में सबसे महान कौन होने वाला है। Then Jesus called a little child, maybe around 2 or 3 years old, and called him and stood him in their midst. Means He made him stand over there in front of him. तो प्रभु यीशु ने एक छोटे बच्चे को, शायद से 2 या 3 साल का बच्चा रहेगा, उसको बुलाया और उन सबके बीच खड़ा किया। He told the disciples, "Unless you get converted and become like little children, you shall not enter the kingdom of heaven." और उन सब चेलों को कहा कि जब तक तुम ये छोटे बच्चे के जैसे नहीं बन जाते, तब तक तुम प्रभु के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। Thing is that Jesus told them, "See, you have to become like a little child. तो इसलिए प्रभु यीशु ने उनसे कहा कि तुम्हें एक छोटे बच्चे के जैसे बनना है। You have to get converted. तुम्हें कन्वर्ट होना है एक छोटे बच्चे के You जैसे। have become big. Now you have to get converted. तुम्हें बदलाव करना है अपने अंदर एक छोटे बच्चे के जैसे। You already got converted first when you became a disciple, decided to follow Jesus. तुम एक बार बदल चुके हो जब तुम मेरे चेले बने हो। Every day you have to get converted. लेकिन हर रोज तुम्हें बदलना है।
You have to become like a little child. तुम्हें एक छोटे बच्चे के जैसे बनना है। Jesus said that what is the meaning of conversion? He said, प्रभु यीशु ने फिर बताया ये बदलने का मतलब क्या है। verse 4, who then humbles himself as this child is greatest in the kingdom of heaven. तो जो कोई भी अपने आप को नम्र बनाता है एक छोटे बच्चे के जैसे, वो प्रभु के राज्य में सबसे महान होता है। Who humbles himself. जो कोई भी खुद को नम्र बनाता है। It all depends upon us. If you want to be great, you have to humble yourself. हम पे निर्भर है, अगर हमको महान बनना है तो हमें खुद को नम्र बनाना पड़ेगा। Nobody can prevent you from humbling yourself. कोई भी तुम्हें नम्र बनने से नहीं रोक सकता। We are by nature extremely proud type, very independent type of people who we like to do what we like to do. हम लोग स्वभाव ऐसे लोग होते हैं कि हम लोग बहुत स्वतंत्र होते हैं और बहुत ही घमंडी लोग होते हैं। We don't like to listen to other people at all. हम लोग को दूसरों की बात सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं होती। And that's why Jesus knew his disciples had a long way to go. इसलिए प्रभु यीशु जानते थे कि इनके चेलों को भी बहुत आगे बढ़ना है ये मामले में। And Jesus said, if you become like this little child, you'll be great in the kingdom of God. तो प्रभु यीशु ने कहा कि अगर तुम ये छोटे बच्चे के जैसे बनोगे तो तुम प्रभु के राज्य में बहुत महान होगे। See, the little child, they're 2 or 3, we can always tell him so many things and he'll listen to it. एक छोटा बच्चा 2 या 3 साल का, उसको तुम कुछ भी बोल सकते हो और वो सुन लेगा तुम्हारी बात। They'll listen, they're all ears and it's very good to talk to small children, when around 2 or 3. इसलिए बहुत अच्छा होता है छोटे बच्चों से बात करने के लिए, क्योंकि वो हमेशा तुम्हारी बात को सुनते हैं। They will listen. वो लोग सुनेंगे तुम्हारी They'll बात, be obedient. वो तुम्हारी आज्ञा का पालन भी करेंगे। And that is the quality of the Lord looks at us. और यही गुण है जो प्रभु हम में भी जांचता है, देखता है। Once a child becomes 3, 4, they start becoming rebellious. एक बार वो बच्चा 3 या 4 साल का हो जाता है, फिर वो बात सुनने बंद कर देता है। They will not listen. वो लोग सुनते ही नहीं है फिर बात। They will now never listen. They become, and the more we grow, we become very independent. वो लोग कभी नहीं सुनते और जैसे वो लोग बढ़ते जाते हैं वो लोग और आजाद होने लग जाते हैं, फिर बात नहीं सुनते किसी They have their will of their own. वो लोग किसी के भी अधीन नहीं रहते, अपनी इच्छा करते हैं। But Jesus said, if you want to be great, you have to humble yourself. लेकिन प्रभु ने कहा अगर तुम्हें महान बनना है तो खुद को तुम्हें नम्र बनाना पड़ेगा। And who is the greatest in the kingdom of heaven? और सबसे महान कौन था प्रभु के राज्य में? When we go to heaven, who's the greatest? जब हम लोग स्वर्ग में जाएंगे सबसे महान कौन रहेगा? Any? Who? Jesus. Why? प्रभु यीशु रहेगा। क्यों? He humbles himself more. Philippians chapter 2, he says he was in heaven, he came to earth, he was God, he came to earth as a human being. क्योंकि उसने सबसे ज्यादा खुद को नम्र बनाया। फिलिपियों 2 में लिखा है वो प्रभु स्वयं था लेकिन वो नीचे आया और एक इंसान बना। Let's see, and become a human being and then become a servant of everybody. और सिर्फ इंसान ही नहीं बना लेकिन सबका नौकर बना। That's why he's always an example for us. इसलिए हमारे लिए एक उदाहरण है वो। He says, yes, and you have to listen to me. Jesus is the humblest. He is almost like a child. इसलिए प्रभु यीशु एक छोटे बच्चों के जैसे, छोटे बच्चे के जैसा है। When you see the eyes of Jesus, the eyes of Jesus are very innocent and very clear. जब हम लोग प्रभु यीशु के आंखों में देखते हैं, उसकी आंखें एकदम, उसमें एक मासूमियत है जो बच्चों में पाई जाती है। That's why when you look at a small baby, it's like you look at Ethan's eyes. It's absolutely without any hypocrisy at all. इसलिए हम लोग कोई अगर छोटे बच्चों की आंखों में देखेंगे तो हम लोग देखेंगे वो आंख में कोई भी खराबी नहीं है। It's like looking into the eyes of Jesus. ऐसा लगता है जैसे हम लोग प्रभु यीशु की आंखों में देख रहे हैं। To become a little child, that's a bit children, people in the kingdom of God should become like that. इसलिए प्रभु के राज्य के लोगों को छोटे बच्चों के जैसे बनना है। And there is simplicity and innocence about it. और उसमें एक समानता है, एक मासूमियत है। There is yes is yes and no is no. कि उनका हाँ हमेशा हाँ होता है, ना ना होता है। And that's what the Lord said. You have to humble yourself. इसलिए प्रभु ने कहा कि हमेशा खुद को तुम्हें नम्र बनाना है। And that is the greatest difficulty in our own life, to humble ourselves. और सबसे बड़ी मुश्किल बात हमारे जीवन में यही है कि हमें खुद को नम्र बनाना है। And when we humble ourselves, we get grace from God. अगर हम लोग खुद को नम्र बनाते हैं तो फिर प्रभु का अनुग्रह हमें मिलता है। And we become like Jesus. और हम लोग प्रभु यीशु के जैसे बनते जाते हैं। That becomes a very happy family. और फिर वो परिवार में भी खुशी आ जाती है। And as children have very good fellowship with each other. इसलिए छोटे बच्चे हमेशा एक दूसरे से बहुत अच्छी संगति में रह पाते हैं। See, whatever fights they have, they quickly forget it. भले वो लोग कितना भी झगड़ा करे वो लोग तुरंत भूल भी जाते हैं। Somebody hit them, beat them, drop their toy. Next time they immediately forget it and they never keep anything in their hearts. भले अगर तुम उनका कोई खिलौना तोड़ दो या उन्हें मारो पीटो, अगली बार वो तुम्हें देखेंगे वो लोग भूल जाएंगे। They quickly forget everything. सब चीज वो लोग जल्दी भूल जाते हैं। And that is the spirit of a child. और वही एक आत्मा है, एक चरित्र है एक छोटे बच्चे का। Adults is not like they will keep record. लेकिन बड़े लोग ऐसा नहीं होते, वो लोग हर चीज का याद रखते, हिसाब रखते हैं। 1 Corinthians says the love does not keep a record of wrong things. लेकिन दूसरे कोरिन्थियों में लिखा है कि प्रेम कभी भी कोई गलत चीज का हिसाब नहीं रखता। We keep all the history back into our mind. हम लोग सब पुरानी चीजें याद रखते हैं हमारे दिमाग में। And that is why we become so miserable. इसलिए फिर हमारा जीवन एकदम बेकार हो जाता है। That we finally quarrel and fight and are so unhappy all the time. फिर हम लोग झगड़ा करते रहते हैं, कभी भी खुश नहीं रहते जीवन में। Children are always happy. They have wonderful fellowship because they forgive everybody. They are so humble in heart. लेकिन छोटे बच्चे हमेशा खुश रहते हैं क्योंकि वो लोग दूसरों को हमेशा माफ कर देते हैं और फिर मन में एक शांति रहती है उनकी। When I was in Baroda, we used to go to a church, a Methodist church. जब मैं बड़ौदा में था तो एक मेथोडिस्ट चर्च में हम लोग जाते थे। And then so many of the older people, the parents were members of this group and that, they were
You know, in the Christian organization, there were heads of different organizations. तो हमें कई ऐसे व्यक्ति लोग थे जो अलग-अलग कलीसिया में एल्डर थे या पास्टर थे। Some were musicians. कुछ लोग गीत बजाने वाले थे। Some were treasurer in the church. कुछ लोग पैसे के मामले देखने वाले थे। Always these people have some tension with each other. तो लेकिन हमेशा उन लोगों के बीच में कोई संगति नहीं रहती थी, हमेशा एक टेंशन रहता था। They would say, "Hello, bye, that's all, hi, bye, that's finish, that's all." वो लोग सामने से हेलो हाय बाय करते रहते थे, लेकिन उससे आगे कभी बढ़ते नहीं थे। And they kept backbiting and gossiping about each other. फिर पीछे एक दूसरे के पीठ पीछे बातें करते रहते थे, गपशप करते थे। The parents of all this, but the children had very time. The church time they used to enjoy playing with each other. लेकिन उनके जो बच्चे थे वो लोग हमेशा आपस में एकदम अच्छे से घुल मिल जाते थे, खेलते रहते थे। Whatever problems the parents had, they had no tension at all. भले उनके माता पिताओं के बीच कुछ भी होता हो, लेकिन वो लोग बच्चे लोग तो हमेशा खेलते रहते थे। That I often think of this. When I look at all their children playing with each other in such good harmony, and all the parents hardly talk to each other, I said, Lord, Jesus said, you become like little children. तो मैं वहाँ पे वो एक अंतर देखता था कि ये माँ बाप के बीच में इतना सब प्रॉब्लम चल रहा है, लेकिन उनके बच्चे लोग एक दूसरे से अच्छे से खेल रहे हैं। तो मैं देखता था कि हाँ, ये चीज़ है जो प्रभु यीशु हमें कह रहा है। When you become a little child, we have good fellowship with everybody. कि जब हम लोग छोटे बच्चे के जैसे बन जाते हैं, हम लोग किसी के साथ भी अच्छा संगति कर सकते हैं। We can tolerate people's faults. हम लोग दूसरों का गलतियों को बर्दाश्त कर सकते हैं, Because we get grace from God. क्योंकि प्रभु का अनुग्रह हमें मिलता है। And that is the blessing always when we remember the breaking of bread. We say, Lord, what was I before you? Who was I, Lord, before I came to know you? तो इसलिए जब भी हम लोग प्रभु भोज में भाग लेते हैं, हमें याद करना है कि प्रभु यीशु आप में आने से पहले मैं कौन था। I was nobody. मैं कोई भी नहीं था। Remember the first day we came to church. हमेशा याद रखो वो पहला दिन जब तुम चर्च में आए, How we came and sat. कैसे तुम आके बैठे। We were hoping that somebody would come and speak to us. हम लोग सोच रहे थे, आशा रख रहे थे कोई आके हमसे बात करे। We were not known to anybody. We are not known to anybody. कोई भी हमें जानता नहीं था उस समय। Somebody comes to speak to us, we consider it a very privilege. कोई भी अगर आके हमसे बात करता था, हम लोग सोचते थे अरे बहुत अच्छा बात हो गया। But after many years in our Christian life, we tend to become somebody. लेकिन मसीह जीवन में कई साल जीने के बाद हम लोग सोचते हैं कि हम लोग बहुत ही बड़े व्यक्ति हो गए अभी। We tend to judge this one and judge that one and pass opinions about this thing and that thing. फिर अलग-अलग लोगों पे हम लोग राय बनाने लग जाते हैं, उनके पीछे गपशप करने लग जाते हैं। And because of that, there is some coldness comes to our own heart. फिर उसके वजह से हमारे अंदर जो मसीह जीवन की जो आग है वो थोड़ी सी धीमी हो जाती है। But the Lord says, always remember the first day of my life and be thankful to God. इसलिए हमेशा प्रभु कहता है कि अपना पहला दिन याद रखो और हमेशा प्रभु को धन्यवाद देते रहो। And that is the secret of all our Christian life. और यही राज है मसीह जीवन का। In our personal life, to dealing with the people around us also. हमारे आपसी जीवन में कैसे हम लोग एक दूसरे से बर्ताव करते हैं। If we humble ourselves, we know how to speak in the correct way. अगर हम लोग खुद को नम्र करेंगे तो हम लोग जानेंगे कि कैसे दूसरे व्यक्ति से बात करना How है। to speak to the people below us. कैसे उन लोगों से बात करना है जो हमसे नीचे हैं। How to speak to below our own colleagues. ऐसे लोगों से जो हमारे नीचे काम करते हैं। It's very easy. Otherwise, we'll just speak very rough and rude words. बहुत आसान हो जाता है, वरना हम लोग बहुत ही बुरी तरीके से बात करेंगे उनसे। The Holy Spirit will give us the grace to speak the right thing. तो पवित्र आत्मा उस समय हमें अनुग्रह देगा ताकि हम लोग सही चीज बोल सकें। We may have to be strict, but we'll speak with a humility and with a graciousness in our own life. हमें सख्ती से पेश आना पड़ेगा, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग एक नरमता से बात कर पाएंगे। And even in our family, in homes, I will speak in a very gracious way. उसी तरीके से घर में भी मैं एकदम अच्छे से बात करूंगा। I know that Lord, you have got me today, and Lord, I am nothing without you. I'll have a humble attitude. हम लोग हमेशा बोलेंगे प्रभु जो कुछ भी मुझे आता है वो मुझे आपने सिखाया है, आपके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ, इसलिए मैं खुद को नम्र बनाऊंगा। We think ourselves sometimes very great. कई बार हम लोग सोचते हैं हम लोग बहुत महान हैं। That's why we shout and we do all sort of things. इसलिए हम लोग दूसरों पे चिल्लाते हैं और बहुत कुछ करते हैं। And sometimes we say it is our voice. My voice is like that. और कई बार हम लोग बोलते हैं कि नहीं, मेरा आवाज ही बहुत ऊंचा है। The tone of speaking is like that. मेरा बात करने का तरीका ही ऐसा है। But it's not like that. लेकिन ऐसा नहीं है। You heard of one brother sharing was that one husband was shouting at his wife. एक कहानी हमने सुना था, एक ब्रदर ने बोला था कि एक व्यक्ति था जो अपनी पत्नी के ऊपर चिल्ला रहा था। And he always say, my voice is like that. That's why I talk in a loud way to my wife. और वो हमेशा बहाना बनाता था कि मेरा आवाज ही ऐसा है, इसलिए मैं ऊंची आवाज में अपनी पत्नी से बात करता हूँ। And suddenly the phone rang. फिर एक दिन फोन आया। In midst of the shouting, suddenly the bishop rang up. तो जब वो चिल्ला रहा था उस समय पास्टर का फोन आया। And suddenly his voice came down. तो जब उसने फोन उठाया तो उसका आवाज एकदम नीचे आ गया। How suddenly from the shouting suddenly so it came down. तो कैसे उसका चिल्लाने का आवाज से वो तुरंत एक धीमे आवाज पे पहुंच गया? Because he thought his wife was nothing. क्योंकि वो सोचता था कि उसकी पत्नी उसकी तुलना में कुछ नहीं है। We thought that he regarded the pastor very much. That's why he talked with great respect. वो पास्टर को बहुत ही आदर करता था, लेकिन अपनी पत्नी के बारे में ऐसा नहीं सोचता था। The Bible says, we all have to learn to give honor to all men. इसलिए बाइबल में लिखा है कि हमें सीखना है हर एक व्यक्ति को आदर देने का। Sometimes in our offices and all, we can speak to people
and in a very rough and a rude way, very sort of demeaning type of way. कई बार हम लोग ऑफिस में लोगों के साथ ऐसा पेश आ सकते हैं, ऐसा बात कर सकते हैं जिससे उनका निंदा हो या उन्हें बुरा लगे। And they think that they are the boss, they can speak anyhow. और कई बार लोग सोच सकते हैं कि हम लोग बॉस है तो हम लोग कैसे बात कर सकते हैं। But many of these bosses, when they are about to get retired, लेकिन कई ऐसे जो मालिक होते हैं जब लोग रिटायर होने वाले रहते then हैं, their voice becomes very soft. उस समय उनका आवाज नीचे आने लग जाता है। Then they will not be loud, shouting, ruling, क्यों ऐसा and that, nothing. They become a little soft. फिर वो लोग ऐसे चिल्लाएंगे नहीं, थोड़ी नरमी से और थोड़ी इज्जत देके वो लोग बात करेंगे। Because they know after the retirement nobody is going to give them any respect. क्योंकि लोग जानते हैं एक बार वो रिटायर हो गए उसके बाद कोई उसे पूछने नहीं वाला है। And that's why we always have to think in our own life. हम भी 2 दिन का मेहमान है इधर बॉम्बे। इसलिए हमेशा हमें याद रखना है कि हम लोग भी यहाँ पे सिर्फ थोड़े टाइम के लिए आए हैं। We show so much of rhubarb and greatness that हम तो इतना बड़ा है, तुम लोग ऐसा है। So that shows how proud we are. कई बार अगर हम लोग इतना घमंड दिखाएंगे उससे मालूम पड़ता है कि हमारे अंदर कितना घमंड है। And that's what the Lord says. For Philippians chapter 2 it says, work out your own salvation. फिलिपियो चैप्टर 2 में लिखा है कि अपनी मुक्ति के ऊपर तुम्हें काम करना See है। that verse? फिलिपियो चैप्टर 2 verse 12. वाक्य 12। So then, my beloved, just as you have always obeyed, not in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and with trembling. इसलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए, पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। For it is God who has worked in you both to will and to do for His good pleasure. क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी स्वेच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। So it is that, my beloved, he says, just as they always obeyed. Philippians had always obeyed the Lord. He said, obeyed the Apostle Paul. तो हमेशा यहाँ पे अपोस्तल पौल लिखता है कि जैसे तुमने हमेशा मेरी बात का पालन किया है, Now you have obeyed in my presence, but much more in my absence. जब मैं वहाँ पे था तुमने मेरे आगे का पालन किया था, लेकिन अभी वहाँ पे नहीं हूँ फिर भी तुम मेरे आगे का पालन कर रहे हो। Much more in my absence means when we are not in the meeting. इसका मतलब क्या है कि जब हम लोग मीटिंग में नहीं आते उस समय हम लोग आगे का पालन करते In हैं। the meeting we can talk very nicely. मीटिंग में हम लोग हमेशा अच्छे से बात करते हैं, But outside the meeting is the most important thing. Much more in our absence. लेकिन मीटिंग के बाहर हम लोग कैसे बर्ताव करते हैं वो और जरूरी है। That's why we always say the most important thing is not the meeting, is what happens outside our meeting, in our workplace and our homes. इसलिए हम लोग हमेशा कहते हैं कि जो चीज मीटिंग में होता है वो सबसे जरूरी नहीं है, लेकिन मीटिंग के बाद क्या होता है वो जरूरी है। Here we are not tempted to grumble and complain. यहाँ पे हमें इतना लुभावना नहीं होता गुस्सा आने के लिए या कुड़कुड़ करने के लिए। Why do we grumble and complain? हम लोग कुड़कुड़ क्यों करते हैं? Because we're very proud. क्योंकि हम लोग बहुत घमंडी हैं। Only proud people grumble and complain. सिर्फ घमंडी लोग ही कुड़कुड़ करते हैं। And I say, Lord, if I find myself grumbling and complaining and very unhappy with things, Lord, I'm very proud. तो अगर हमें कहना है कि अगर मैं देखूंगा खुद को कुड़कुड़ करते हुए तो मैं प्रभु से मुझे कहना है कि प्रभु मैं बहुत घमंडी हूँ। Lord, help me to humble myself under your mighty hand. प्रभु मुझे मदद कर खुद को नम्र बनाने के लिए तेरे बलवान हाथ के नीचे। Help me to mind my own business. मदद कर कि मैं अपने काम से काम रखूं। Then I will be happy. I'll be always be giving thanks to God. फिर मैं खुश रहूंगा और हमेशा प्रभु को धन्यवाद देता रहूंगा। The Bible says the humble alone give Him thanks. बाइबल में लिखा है कि जो नम्र व्यक्ति होते हैं वही प्रभु को धन्यवाद देते The हैं। humble alone give God thanks. सिर्फ नम्र लोग ही प्रभु को धन्यवाद देते हैं। Lord, give me that heart of always being a humble person. प्रभु मुझे ऐसा मन दे कि मैं हमेशा एक नम्र व्यक्ति रहूं। And those who give thanks glorify God. Those who give thanks glorify God. जो लोग प्रभु को धन्यवाद देते हैं वो लोग उसकी महिमा करते हैं। And God takes control of their lives. और फिर प्रभु उनके जीवन के ऊपर नियंत्रण लेता है। That's why the devil doesn't want us to become humble at all. इसलिए शैतान नहीं चाहता कि हम लोग नम्र बने। It's so difficult for us to become humble. इसलिए कितना मुश्किल होता है नम्र बनने के लिए। Because the devil is so charged to come into the kingdom of God. और उनको मौका मिले कि लोग प्रभु के राज्य में आ सके। And that is why we must really see that our lives are close to the Lord as much as possible. इसलिए हमें ध्यान रखना है कि हमारे जीवन में भी हम लोग प्रभु के एकदम निकट जी रहे हैं। The more obedient we are, the greater we become in the eyes of God. जितना हम लोग आज्ञाकारी रहेंगे उतना हम लोग प्रभु की नजरों में महान बनते जाएंगे। That's why the greatest people in the church are the people who are the humblest. इसलिए कोई भी कलीसिया में सबसे महान व्यक्ति वो होते हैं जो लोग सबसे ज्यादा नम्र होते हैं। May not be the preacher is the greatest or the singer is the greatest, but the person who has a humble heart is always the greatest. जरूरी नहीं कि जो प्रचार करे या जो गीत गाए वो सबसे महान है, नहीं, लेकिन जो सबसे नम्र है वो सबसे महान होता है। And all of us have equal opportunity to humble ourselves. और हम सबके पास सामान्य मौका है कि हम लोग बन सके, नम्र बन सके। The greatest is closest to the Lord. और जो सबसे महान और नम्र रहेगा वो प्रभु के सबसे निकट रहेगा। I mean, we may be young, we may be old, whoever we are,
we have close fellowship with the Lord. भले तुम युवक रहो या बुजुर्ग रहो, तुम प्रभु के एकदम पास रह सकते हो, एक निकट का संगति रख सकते हो। You may never be an elder, but you will be the pillar in the church of God. भले तुम कभी एल्डर नहीं बन सके, लेकिन तुम एक महान व्यक्ति बन सकते हो, एक बहुत ही जरूरी हिस्सा बन सकते हो कलीसिया का। I was thinking about that book which we read about the Lion, the Witch and the Wardrobe. लायन द विच एंड द वॉर्डरोब। हाँ, there is a by C.S. मैंने Lewis. पढ़ा था, वो बहुत ही अच्छा किताब है। There were 4 children, इसमें 4 बच्चे होते हैं, and the youngest was Lucy, who had a simple love, and there is simplicity and truthfulness about her. इसमें जो सबसे छोटा बच्ची रहती है, उससे 4 साल की रहती है, उसके पास प्रभु की ओर बस एक सीधा साधा प्रेम था। She had the revelation of whom Jesus was. तो उसके पास ज्ञान था कि प्रभु यीशु कौन है। The youngest of all. सबसे जो छोटी थी उसके पास। And other people thought, no, nothing may be wrong with her. तो बाकी सब लोग जो उससे बड़े थे वो सोचते थे कि नहीं, इसे पता नहीं है। So God is no respecter of persons. He doesn't show any partiality at all. तो प्रभु के पास कुछ भी भेदभाव नहीं होता। If you humble ourselves, God will be close to you. अगर तुम खुद को नम्र बनाओगे तो प्रभु तुम्हारे निकट आएगा। You heard the example of Mary Magdalene last time. हमने पिछली बार उदाहरण सुना था मेरी मैगडलीन के बारे She में। was such a bad woman. वो एकदम खराब औरत थी। His past history was terrible. उसका जो पिछला जीवन था एकदम खराब था। The first person to see Jesus was she. लेकिन सबसे पहले कौन था जिसने प्रभु यीशु को देखा? उसने। Before all the beloved John and Matthew and Peter and James, everybody, Mary Magdalene was first. बाकी जितने भी सब चेले थे, बड़े-बड़े चेले थे, वो लोग कोई देख नहीं पाए, लेकिन मैरी मैगडलीन पहली व्यक्ति थी जिसने प्रभु यीशु को देखा। And that can always amaze us. और वो एक बहुत ही अद्भुत चीज है। हम In हमारे heaven we'll get a lot of pleasant surprises. हम लोग जब स्वर्ग में जाएंगे, हम लोग को बहुत सारी चीजें ऐसे मिलेंगी जिससे हम लोग अचंभित हो जाएंगे। James and John and their mother wanted Jesus. They had a request from Jesus. यूहन्ना और याकूब की जो माँ थी, उसके पास एक विनती था प्रभु यीशु के लिए। Maybe the mother wanted. All mothers love very good things for their sons. तो हमेशा कोई भी माँ रहती है, वो हमेशा अपने बच्चों के लिए अच्छा ही चाहती है। So she had 2 sons, James and John. तो उसके पास 2 बेटे थे, यूहन्ना और याकूब। Says my son should sit on the right side and left side of Jesus. तो उसने बोला कि मेरे दोनों बेटे आपके एक दाहिने बाजू एक बाएं बाजू बैठने चाहिए स्वर्ग में। And Jesus said, I cannot say that. It's only for the Heavenly Father who has decided who will sit on the right and the left. तो प्रभु यीशु ने कहा कि ये निर्णय मेरा नहीं है, ये निर्णय सिर्फ परमेश्वर पिता परमेश्वर ले सकते हैं। Because it is those who are humblest in the kingdom of God can sit on the right and the left. क्योंकि ये जगह सिर्फ उनको मिलेंगे जो प्रभु के राज्य में सबसे नम्र थे। And when we go to heaven, sometimes Brother Zach says it could be a sister who's sitting right to the right side of Jesus. ब्रदर ज़ैक कहते हैं कि एक दिन हम लोग स्वर्ग में जाएंगे तो देखेंगे कि शायद से उसमें कोई सिस्टर बैठी रहेगी एक जगह पे। Because Jesus said the first shall be last and the last shall be first. क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा कि जो सबसे पहले होते हैं दुनिया में वो अंत में रहेंगे और जो सबसे अंत में है वो पहले रहेंगे। Because God only sees each one's heart. क्योंकि सबका मन सिर्फ प्रभु ही जानता है। And that's why the Lord sees my heart whether it's humble or it's proud. तो इसलिए प्रभु देखता है कि मेरे मन में घमंड है कि मैं नम्र हूँ। A humble person always has a thankful heart. जो नम्र व्यक्ति है हमेशा वो धन्यवाद देता रहता है अपने मन से। And whatever they do with the spirit of thankfulness. और जो कुछ भी वो लोग करते हैं वो लोग हमेशा धन्यवाद देके करते हैं। Like the poor widow who gave the little offering to the Lord जिसे वो on the temple. जिसे वो गरीब विधवा थी जिसने प्रभु के दान पेटी में कुछ पैसा डाला था। She put perhaps 2 rupees. उसने खाली 2 ही रुपए डाला रहेगा। Other people put 20,000 rupees, 40,000 rupees. बाकी लोग 20-40 हजार डालते रहेंगे। And Jesus saw it. Jesus said she put in more than everybody else. लेकिन प्रभु यीशु ने कहा कि उसने बाकी सबसे ज्यादा डाला है। Why? क्यों? Because she put all that she had. क्योंकि उसके जो कुछ था उसने सब कुछ डाल दिया। She could have bought a piece of bread for 2 rupees, but she said, I will go hungry. I have nothing in the world. Whatever I have, I'll put in the box for 2 rupees. वो 2 रुपए से कुछ खाने का चीज ले सकती थी, लेकिन उसने बोला नहीं, उससे अच्छा मैं भूखी रहूंगी, जो कुछ है मेरे पास मैं डाल दूंगी इसमें। He said, this widow has put in more than every combined. इसलिए प्रभु यीशु ने कहा कि ये विधवा ने बाकी सबसे ज्यादा डाला है। No chartered accountant can figure this out. कोई भी बड़ा ज्ञानी व्यक्ति या सीए इसको समझ नहीं सकता। इसका value is number 1. इसका? Her value was number 1. कि उसका कीमत वो कभी समझ नहीं सकता। That's why whatever we do for the Lord, we have to do it from our heart. इसलिए जो कुछ भी हम लोग प्रभु के लिए करते हैं हमें मन से करना। Don't do it in a sense of duty. Say, Lord, I have to do this. No, Lord, I do it because I love you. सिर्फ करने के लिए मत करो, लेकिन मन से करो, प्रभु के लिए एक प्रेम रखो और उस प्रेम की वजह से करो। And the more humble we are, the more thankful we are to serve the Lord. और जितना हम लोग नम्र रहेंगे उतना हम लोग फिर प्रभु की सेवा और करेंगे। And we serve His church also, serve one another with a humble spirit. और हम लोग एक दूसरे की सेवा और उसी कलीसिया की सेवा भी करेंगे। And that is the spirit which God wants to give us even as we break bread. और प्रभु चाहता है कि हम लोग ये नम्र आत्मा से आए आज प्रभु भोज में भाग लेने के लिए। Let us think low thoughts about ourselves. हमें खुद के बारे में कम चीजें सोचना है। And then when we think low, जब हम लोग खुद के बारे में छोटा सा the grace of God will be upon our lives. तो फिर प्रभु का अनुग्रह हमारे जीवन के ऊपर आता है। Joy of the Lord will be upon our lives. उसका आनंद हमारे जीवन में आता है। God will give us peace वो हमें शांति देगा abundantly.
बहुत टाइम है। Hallelujah. Hallelujah. Amen.